Good afternoon, everyone. As we begin the 11th technical session of the AICTE Atal Advanced Faculty Development Program, it is my privilege to introduce our esteemed speaker for the session, Professor Amita Pandey Bharadwaj ma'am. Ma'am is a distinguished academician and presently serves as professor in the School of Education and Director, Malviya Mission Teacher Training Center at Sri Lal Bahadur Shastri National Sanskrit University, New Delhi. With over 23 years of experience in teaching and research, she holds doctorates in both chemistry and education. Her areas of expertise include educational technology, curriculum development, research methodology, and educational evaluation. She has guided numerous doctoral and master's scholars, coordinated more than 70 national level academic programs, authored several books, and has been a resource person at prestigious institutions across the country. Today, ma'am will be delivering an insightful session on building a digital-ready curriculum for future studies. Before we invite ma'am to address the gathering, may I request Professor Ramakrishna sir to present a plant and a memento to our esteemed guests as a token of our warm welcome, respect and gratitude. Ma'am, we are truly honored to have you with us today. The stage is all yours. You can come. पीडीएफ इनको शेयर कर देना। दोनों भेज दो। वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। मुझे कल आप लोग खाना खाकर आ चुके होंगे, लेकिन अभी आपकी तालियां बज रही थी, उससे लग नहीं रहा था कि आप लोग खाना खाकर आए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ के इस महाविद्यालय के प्राचार्य आदरणीय प्रोफेसर देवेंद्र सिंह जी, जो अभी हमारे बीच नहीं है लेकिन देखें, और प्रोफेसर रामकृष्ण जी जो कि देख रहे हैं, और जो आयोजक मंडल है इस महाविद्यालय का, इसमें कंप्यूटर साइंस से है प्रोफेसर शालिनी जी और मैनेजमेंट से निधि जी, दिख नहीं रही हैं, और प्रिय प्रतिभागीगण। I think it's indeed a very pleasant privilege for me to be the part of the program once again for being organized by this very prestigious
college of, I think, of the state as well as of India also. And I must congratulate the entire team of this advanced faculty development program for choosing a very relevant topic of this faculty development program. And I am thankful and grateful to the organizers for giving me the opportunity to just share my little bit of experience, the topic which is being assigned to me, that is the digital curriculum, building a digital curriculum, ready curriculum for future studies. So in today's session, we will be focusing on how we can prepare or develop a curriculum. किस तरह से हम एक curriculum जो कि फ्यूचर रेडी हो, और आप सभी लोग जानते हैं कि आजकल डिजिटल टेक्नोलॉजीज की बात करी जा रही है, और जब से राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 आई है तो मेरे ख्याल आई होप कि आप सब ने पढ़ी होगी। पढ़ी है कि नहीं? अगर नहीं पढ़ी तो जरूर पढ़ लीजिएगा, डाउनलोड करिएगा उसको। 67 पेजेस हैं, मेरे ख्याल रोज एक एक दिन पढ़ेंगे तो 2-2.5 महीने में और फिर भी क्योंकि आप लोग शॉर्टकट में ज़्यादा बिलीव करते हैं तो उसके फ्रंट वाले डायरेक्टिव प्रिंसिपल तक फर्स्ट 10 पेजेस एंड आफ्टर दैट हायर एजुकेशन वाले पार्ट को जरूर टच करिएगा, तो उससे आपको एक बेसिक आइडिया मिल जाएगा। क्योंकि जब भी नीति आती है तो नीति डायरेक्ट करती है कि व्हाट इज द एक्सपेक्टेशन ऑफ द कंट्री फॉर द नेशनल डेवलपमेंट, ठीक है। और अगर आप उसके डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में जाएं तो उसमें आप देखेंगे कि एक जो बहुत इम्पोर्टेंट जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल है NEP 2020 में, दैट इज द टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन एट ऑल लेवल्स ऑफ एजुकेशन, वेदर इट इज अ स्कूल एजुकेशन और हायर एजुकेशन। और जब टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन की बात NEP 2020 करता है, और उससे पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के काफी सारे डिजिटल इनिशिएटिव्स आए जिसमें डिजिटल इंडिया, लेकिन उस समय जब एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को कहा गया तो मेरे ख्याल हम लोग फेस टू फेस टीचिंग में ज़्यादा जो है वो बिलीव करते थे, ठीक है। और फिर उसके बाद 20 में कोविड आ गया, और कोविड में जब आया तो टीचर्स के सामने जो चैलेंज आया दैट दे हैव टू डायरेक्टली जंप फ्रॉम और टू स्विच फ्रॉम द फेस टू फेस टीचिंग टू ऑनलाइन टीचिंग। जबकि जो डॉक्यूमेंट आया था जो डिजिटल इंडिया और डिजिटल इनिशिएटिव्स का, कि उसमें आप पहले फेस टू फेस से हाइब्रिड पे आएंगे और फिर हाइब्रिड से आप लोग ऑनलाइन में आएंगे, लेकिन वहाँ हमको डायरेक्ट स्विच करना था। एंड इफ यू रिमेंबर दैट टाइम कि 20s में जब कोविड आया था तो इंस्टीट्यूशन की तरफ से डायरेक्शंस मिले कि नाउ यू हैव टू स्टार्ट द ऑनलाइन क्लासेस, ठीक है। और फिर जैसे तैसे फैकल्टी को कहीं इंस्टीट्यूशन इनिशिएटिव से, कहीं फैकल्टी ने अपने इनिशिएटिव से कि किस तरह से ऑनलाइन टीचिंग होगी। और मेरे ख्याल गूगल मीट भी तब बहुत कम, मेरे ख्याल सुना ही नहीं था, और कैसे उसको यूज़ किया जाता है वो फिर सभी टीचर्स ने सीखा और अपना पाया। और अब 3-4 साल में ये स्थिति आ गई है, हम लोग भी अपने प्रोग्राम्स कराते हैं कि ऑल पार्टिसिपेंट्स ऑफ दैट इज द हायर एजुकेशन फैकल्टी दे प्रेफर ऑनलाइन प्रोग्राम्स वर्सेस आपके जो हैं फेस टू फेस। तो फेस टू फेस में तो अब आते ही नहीं है, आप लोग पता नहीं कैसे बैठे हैं, मैं तो यही देख रही हूँ। 12 दिन का है प्रोग्राम ना आपका, 12 दिन का मतलब सारा काम छोड़कर 12 दिन सुबह 9 बजे से शाम के 5 बजे तक बैठना। आई कैन अंडरस्टैंड, लेकिन फिर भी आप मुस्कुराते चेहरे से बैठे हैं, दैट इज गुड ऑन योर पार्ट। तो टेक्नोलॉजी, और फिर इसके बाद में अगर मैं एक दूसरा पहलू दूं टेक्नोलॉजी का, तो हम लोग अपने पर्सनल लाइफ में, फैमिली लाइफ में, सोशल लाइफ में हम बहुत यूज करते हैं टेक्नोलॉजी का।
चाहे फेसबुक हो, चाहे कहीं हमको अपना स्टेटस डालना हो, कहीं रील बनानी हो, और ये सेल्फी आ गई है व्हाट्सएप, और जो नई जनरेशन हो तो इस एंगल उस एंगल और पता नहीं कितनी, और फिर वो अपलोड होती है उनकी। तो कहने का मतलब है कि हमने अपनी पर्सनल, सोशल, हर लाइफ का पार्ट बनाया टेक्नोलॉजी को बहुत पहले, और घर पे भी अगर खुद खरीद सकते थे तो खुद खरीदते थे, लेकिन पेरेंट्स के यही डिमांड रहती थी कि हमको स्मार्ट मोबाइल फोन दीजिए। स्मार्ट खुद नहीं बनेंगे लेकिन मोबाइल स्मार्ट होना चाहिए, लेकिन उसका यूज जो था वो केवल उसी पर्पस के लिए। ठीक, तो ये रियलाइज किया गया कि जो टीचर्स स्पेशली थे कि क्यों नहीं वो एजुकेशन का भी उसको पार्ट बनाएं, उस टेक्नोलॉजी को। उसमें हम लोग लैग कर रहे थे, पर्सनल उसमें सब में खूब अच्छा, ऑनलाइन पेमेंट ब्लिंकिट से देना है, वहां से ऑर्डर देते थे, सब चीज करते थे, लेकिन जहां क्लासरूम टीचिंग की बात आई, असेसमेंट की बात आई, रिसर्च की बात आई, वहां वी वर जीरो। इसीलिए जितने ट्रेनिंग प्रोग्राम्स जो हैं वो कराए जा रहे हैं, और जब उसके बाद फिर NEP 2020 आ गई, और उसमें तो मेन फोकस जो है वो टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन के ऊपर जो है वो। तो आज का जो प्रेजेंट एजुकेशनल सिनेरियो है उसमें एक पैराडाइम शिफ्ट हुआ है। पैराडाइम शिफ्ट कहां से? फ्रॉम द टीचर सेंटर्ड अप्रोच टू द लर्नर सेंटर्ड। राष्ट्रीय शिक्षा नीति भी यही कहती है, यही हम आगे सब डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी भी अगर हम अपने पूरे भारत में इंस्टीट्यूशन देखें, वी आर स्टिल स्टिकिंग ऑन टीचर सेंटर्ड अप्रोच। फिर अगर हम जब टीचर से लर्नर सेंट्रिक होते हैं तो फिर बहुत सारे चेंजेस हैं कि एक फिक्स्ड शेड्यूल से हम फ्लेक्सिबल की ओर, ट्रेडिशनल जो हमारा मेथड है, वी हैव टू शिफ्ट टू द डिजिटल मोड। डिजिटल चेंज में तीन चीजें, तीन नाम आपने सुने होंगे। फर्स्ट इज डिजिटाइजेशन, सेकेंड इज डिजिटलाइजेशन, एंड थर्ड इज डिजिटल चेंज। व्हाट इज द डिफरेंस इन थ्री? डिजिटाइजेशन, डिजिटलाइजेशन एंड डिजिटल चेंज। सुने हैं तीनों नाम? बोले कोई आप में से? अब तो आपके मेरे ख्याल काफी लेक्चर्स हो गए हैं। तीनों वर्ड्स तो सुने हैं ना आपने? डिजिटाइजेशन की, जिसमें हमने अपने क्लास नोट्स को स्कैन किया और उसको, मतलब एनालॉग डाटा को हमने बाइनरी सिस्टम में किया, एक डिजिटल फॉर्मेट। डिजिटल फॉर्मेट में जब भी चीज आती है, इट इज इन द बाइनरी फॉर्म। ठीक है, तो हमने जो स्कैन करके जो हमारा फिजिकल जो डाटा था उसको हमने किस में कर दिया, दैट इज डिजिटाइजेशन। वो हम कर चुके हैं, बहुत स्कैन कर करके हमने रिसोर्सेज बनाए। और जब NAAC की इवैल्यूएशन हुई थी तो इंस्टीट्यूशंस ने अपने जो हार्ड डॉक्यूमेंट्स थे, हार्ड कॉपीज थी, उनको स्कैन कर करके और सब अपलोड किया NAAC पोर्टल, दैट इज डिजिटलाइजेशन। नेक्स्ट स्टेप, जिसमें हमने डिजिटल टूल्स को यूज किया और उनको इंटीग्रेट किया अपनी टीचिंग प्रोसेस से, लर्निंग प्रोसेस से, हर एक प्रोसेस, दैट इज डिजिटल। और किस लिए किया? कि अपने काम को और अच्छा। ठीक है, और तीसरा डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन और थोड़ा है, और आजकल हम डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की ही बात कर रहे हैं, वो दो तो लोअर हो गए। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन में, जिसमें हम अपने रीडिफाइन कर रहे हैं टीचिंग को, लर्निंग को, असाइनमेंट प्रोसेस को, और उसको सपोर्ट दे रहे हैं, उसको इंटीग्रेट कर रहे हैं थ्रू बाय यूजिंग सम LMS, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। आपने देखा होगा कई इंस्टीट्यूशंस के अपने लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम्स होते हैं। ठीक है, उसी में सारे रिसोर्सेज और जो स्टूडेंट्स हैं वो उसी के थ्रू जो है अपनी बातें। ठीक है, तो इस तरह का जब सपोर्ट इंस्टीट्यूशन के साथ इंटीग्रेटेड वे में जितने भी एजुकेशनल प्रोसेसेस हैं हायर एजुकेशन में, स्पेशली टीचिंग, लर्निंग, असेसमेंट, रिसर्च वर्क, तब वो आपका हो जाएगा डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। तो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन।
तो जो ये पैराडाइम शिफ्ट हुआ है कि ट्रेडिशनल से डिजिटल चेंज की तरफ, और डिजिटल चेंज में ये मैंने जो आपको तीनों चीजें जो है वो बताई। फिर जो ट्रेडिशनल में था उसमें जो भी हम मॉडल अपनाते थे या पढ़ाते थे या हम इवैल्यूएशन या असेसमेंट करते थे, उसमें हम एक बनाते थे, एक मॉडल दैट इज विच इज फिट फॉर ऑल। एक ही तरह से पढ़ाएंगे और हम कहेंगे कि सारे स्टूडेंट जो है उसी तरह से पढ़ें। एक ही क्वेश्चन पेपर बनाएंगे और कहेंगे कि सारे जो हैं स्टूडेंट्स वो उसी तरह से उनका असेसमेंट उस प्रोग्राम में होगा। लेकिन नाउ दैट शिफ्ट हैज बीन चेंज्ड। उसमें अब क्या आ गया है कि उसमें रोट के बदले अंडरस्टैंडिंग पर, एप्लीकेशन पर, एनालिसिस बेस्ड असेसमेंट, कॉम्पिटेंसी बेस्ड असेसमेंट को ज्यादा जो है वो फोकस किया गया। तो इस तरह से जो अभी आज के प्रेजेंट सिनेरियो में जो चेंजेस आए हैं, और हो गया। तो आज हम जो अभी 1-2 घंटे जिस पर बात करेंगे उसमें डिजिटल रेडी करिकुलम कि जो अभी तक हमारा जो करिकुलम हम जो भी पढ़ रहे हैं, चाहे वह कॉमर्स का हो, मैनेजमेंट का हो, साइंस का हो, कंप्यूटर साइंस का हो, एजुकेशन का हो, कोई भी हम करिकुलम की बात करें, अब उस करिकुलम को क्या बनाना है, डिजिटल रेडी करिकुलम। तो व्हाट वी मीन बाय a digital ready curriculum, that we are going to discuss it. Then what are the vision and regulation of AICTE? Because whenever we develop a curriculum, we have to see the you can say the regulatory bodies. For engineering you must be knowing it is AICTE, and for the arts and the other we are having UGC, the regulatory. ठीक है, तो we will go through the vision and regulations as per the AICTE. Then what are the objectives and the purpose of digital ready curriculum? This PPT it will be shared with you. And then what are the key features when we develop or prepare a digital ready curriculum? So what key features we have to keep in mind for that, and then in the last we will develop a digital ready course. Curriculum में आपको पता है, if you have seen the structure, 2 words हम use करते हैं, curriculum and syllabus. What is the difference between the 2 terms? करते हैं, सुना ना आपने, curriculum and syllabus. Curriculum is a broad perspective and it included syllabus. syllabus उसमें, तो syllabus जो है वो आपका कंटेंट वाला पार्ट है जिसमें आप यूनिट्स में कंटेंट को जो है वो लिखते हैं। बट इफ यू गो टू द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द करिकुलम तो वो ब्रॉडर होता है, कंप्रिहेंसिव होता है, एंड इट इन्वॉल्व्स यू कैन से द ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ द लर्नर। और जब हम ऑल राउंड डेवलपमेंट की बात करते हैं तो उसमें तीनों डोमेन्स आएंगे, कॉग्निटिव डोमेन, इफेक्टिव डोमेन एंड द साइको। तो यहाँ पर क्योंकि करिकुलम बहुत बड़ा है, उसको बनाना मुश्किल है, तो आई विल जस्ट गिव कि कैसे एक कोर्स को हम डेवलप करेंगे। फॉर्मेट मेरे ख्याल आपको मैडम ने जो है दे दिया होगा। अभी मैंने दिया नहीं है, तो हमारे पास ये जब टीम में बैठेंगे तब ठीक है, ठीक, अभी तो मैं डिस्कस करूँ। तो डिजिटल रेडी करिकुलम की ज़रूरत आज के, और ये आज के आपके प्रोग्राम में जो है इसको लिया गया है, और आपका पूरा जो इस एडवांस एफडीपी का जो टॉपिक भी लिया है उसमें इसकी बात की गई है डिजिटल रेडी। ठीक है, तो जो रैपिड एडवांसमेंट ऑफ डिजिटल, वी आर लिविंग इन द डिजिटल इरा। तो जो डिजिटल टेक्नोलॉजीज जिसमें आजकल एआई की बात की जा रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, ऑटोमेशन की बात की जा रही है, डेटा साइंस की बात की जा रही है, और फिर इंटरनेट ऑफ थिंग्स। ये क्या होता है इंटरनेट ऑफ थिंग्स? पढ़ाएंगे?
जिसमें फिजिकल ऑब्जेक्ट्स को कनेक्ट किया जाता है। हाँ हाँ, तो इसमें आपका कंज्यूमर भी हो सकता है, कमर्शियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स भी हो सकता है, ठीक है। तो अलग अलग डिपेंडिंग अपॉन द यूजेबिलिटी एंड द एनवायरनमेंट एंड द स्केल। एंड इंडस्ट्री 4.0 जो कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 4 है, हैज फंडामेंटली ट्रांसफॉर्म्ड एजुकेशन एंड द एम्प्लॉयमेंट ऑल्सो। तो जो भी अब फ्यूचर में जितने एम्प्लॉयमेंट्स हैं, और अगर हम लोग अपने टाइम का याद करें और आज का जो है, दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस। Educational institutions are expected to prepare students not only with subject knowledge. हमारे टाइम में सिर्फ जो स्टूडेंट्स थे, जो भी प्रोग्राम करते थे, वो सब्जेक्ट नॉलेज के केवल एक्सपर्ट्स होते थे। But now the expectation is not only this, but also with digital competence. Knowledge तो हो, साथ में उसमें डिजिटल कॉम्पिटेंसीज भी हों, उसमें इनोवेशन स्किल्स भी हों, और लाइफ लॉन्ग लर्निंग एबिलिटीज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर आपने करिकुलम फ्रेमवर्क देखा हो, उसमें ग्रेजुएट एट्रीब्यूट्स देखे हों, वेदर ऑफ AICT और UGC, देखें आपने करिकुलम फ्रेमवर्क? नहीं देखा, देखिएगा उसको, वो भी सब आपको नेट पे ही मिलेगा। उस पे आप ये तो देखेंगे धुरंधर 2 डाउनलोड कर लें, है ना, लेकिन ये कभी नहीं देखा होगा कि पॉलिसी को ही डाउनलोड कर लें और अपने उसमें रखें। तो ट्रांसफॉर्मेशन शुड बी इन आवर माइंडसेट, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि हम अगर टीचर्स में ही ये नहीं है, तो हम स्टूडेंट से क्या एक्सपेक्ट करेंगे, ठीक है। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन तभी पॉसिबल है जब हम अपने माइंडसेट को जो है वो चेंज करेंगे, और उसमें सब्जेक्ट नॉलेज के साथ ये चीज़ें भी होनी चाहिए। और जब ये चीज़ें होनी चाहिए, तो आपको कैसा करिकुलम चाहिए? डिजिटल रेडी करिकुलम। आप तो कहेंगे मैं हिंदी पढ़ाता हूँ, या आर्ट्स का कोई विषय, हिस्ट्री पढ़ाता हूँ, या फिलॉसफी, तो डिजिटल की क्या बात है? हर डिसिप्लिन के साथ। इसीलिए हम लोग जो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स कराते हैं, तो हम कहते हैं कि उसमें सिर्फ टेक्नोलॉजी वाले या कंप्यूटर वाले ही टीचर्स नहीं आएंगे, हर डिसिप्लिन की फैकल्टी मेंबर होगा जिसमें ये डिजिटल स्किल्स, क्योंकि जब तक टीचर में नहीं होगी तो स्टूडेंट्स में कहाँ करेंगे। और जब हम एजुकेशन वाले प्रोग्राम की बात करें, तो वहाँ तो हम टीचर्स बना रहे हैं, पीपल टीचर्स बना रहे हैं B.Ed प्रोग्राम में। तो स्टूडेंट्स को जब तक उसके करिकुलम का वो पार्ट नहीं होगा, तो स्टूडेंट नहीं सीख पाएगा। तो जब तक टीचर के बिहेवियर रेपर्टायर में ये चीज़ें नहीं आएंगी कॉम्पिटेंसीज, तब तक, तो उससे पहले करिकुलम में वो सब चीज़ें जो हैं वो होनी चाहिए। इन इंडिया आपका AICT हैज एम्फेसाइज्ड द नीड फॉर डिजिटल रेडी करिकुलम, ठीक है। इसलिए आज ये बात जो है वो करी जा रही है इस प्रोग्राम के माध्यम से, और इसके लिए उसने काफ़ी सारे इनिशिएटिव्स उसके हैं, जिसमें वन इज योर पॉलिसी डॉक्यूमेंट, दैट इज द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, जिसमें ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल में बात की गई है, दैट इज ऑफ द टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन इन ऑल द एजुकेशनल प्रोसेस एंड एट ऑल द लेवल्स ऑफ एजुकेशन। और AICT मॉडल जो करिकुलम अगर आपने देखा होगा, वहाँ पर भी इसकी बात की गई है। और एक ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आउटकम बेस्ड एजुकेशन। क्या समझते हैं? सुना है ना, आउटकम बेस्ड पर्टिकुलर कोर्स का मैम कि इसके क्या आपको इसके रिफ्लेक्शंस क्या होंगे, और ये कोर्स आप जब करोगे तो उससे आपको क्या होगा। फॉर एग्जांपल अगर आप इकोनॉमिक्स स्टडी कर रहे हैं, तो क्यों स्टडी कर रहे हैं, क्या आउटकम्स होंगे इससे, क्या क्या चीज़ें आपको अंडरस्टैंडिंग होगी, लर्निंग होगी, और कैसे आपका आगे होगा। तो आउटकम्स जो होंगे वो नॉलेज डोमेन में, स्किल डोमेन में, एटीट्यूड। तो उस प्रोग्राम को जब स्टूडेंट कर लेता है, लर्नर कर लेता है, तो उसके नॉलेज डोमेन में क्या क्या चेंजेस क्या आएंगे, स्किल में कितने आएंगे, एटीट्यूड। उसको जब हम स्टेटमेंट्स के रूप में लिखते हैं बाय यूजिंग द प्रॉपर एक्शन वर्ब, वो आपका आउटकम। और जो हमने लिखा उसका फिर असेसमेंट होता है, और असेसमेंट के बाद हम देखते हैं कि वेदर द स्टूडेंट्स हैव अचीव्ड दोज आउटकम्स और नॉट। तो आउटकम बेस्ड एजुकेशन और इवैल्यूएशन भी इसी पर ही होगा।
डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म्स जो हैं वो बने। इंटर्नशिप को मैंडेटरी एसेंशियल कंपोनेंट्स प्रोग्राम को यूजी प्रोग्राम का बनाया गया है, चाहे आप यूजी जो यूजीसी ने दिया है या एआईसीटी का। तो इंटर्नशिप में क्या होता है? means student should have a technical knowledge, practical knowledge of that. प्रैक्टिकल नॉलेज। And तो जो वो थ्योरी में पढ़ रहा है थ्रू डिफरेंट पेपर्स जो कोर्सेज हैं उसकी प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए वो किसी जगह जो है अटैच किया जाए, ठीक है। जैसे अगर मैं बीएड में कहूँ तो वहाँ पर वो पेडागोजी और वो सब पढ़ते हैं, तो दे आर बीइंग अटैच्ड टू अ स्कूल, तो वो वहाँ पर इंटर्नशिप जो है वो करते हैं। तो जो जिस फील्ड का होगा तो वो वहाँ पर जो है, तो इंटर्नशिप को यूजी प्रोग्राम का एसेंशियल कंपोनेंट जो है वो बनाया गया है दोनों गाइडलाइंस में, यूजीसी की भी और एआईसीटी की। एंड स्किल बेस्ड एजुकेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये 3-4 चीजें हैं स्किल पर, और आपने देखा होगा ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जो हैं हमेशा वो कौशल विकास पर, तो आपका पूरा मंत्रालय जो है वो, ठीक है। तो कौशल, और अगर आपने लर्निंग आउटकम बेस्ड जो करिकुलम फ्रेमवर्क है, दैट इज द मॉडल फ्रेमवर्क बीइंग फॉर्मुलेटेड बाय यूजीसी एंड एआईसीटी, तो उसमें आप देखेंगे कि यूजी के लिए ग्रेजुएट एट्रीब्यूट्स दिए गए हैं। देखें आपने, उन ग्रेजुएट एट्रीब्यूट्स में आपको सारी स्किल्स मिलेंगी, जिसमें आपकी 21st सेंचुरी स्किल्स भी हैं सारी। 21st सेंचुरी स्किल्स में क्या है आपके? for particular ma'am Critical- skill-based education there is concept of SEC, that is skill enhancement course. वो तो कोर्स है, वो तो मैं अलग बात करूँगा, अभी तो मैं सिर्फ स्किल्स की बात कर रही हूँ। जो 21st सेंचुरी स्किल है वो तो आपकी आनी चाहिए जब अभी आप कोर्स बनाएंगे। उसमें क्रिटिकल थिंकिंग, कम्युनिकेशन स्किल, कि अगर कोई यूजी का बच्चा है तो उसको बोला जाए कि इस टॉपिक पर बोले तो वो अच्छी तरह से बोल सके, कम्युनिकेशन स्किल्स उसमें होनी चाहिए। फिर क्रिएटिविटी, अगर एनईपी में देखेंगे तो उसमें लिखा है डेवलपमेंट ऑफ क्रिएटिव पोटेंशियल्स। क्रिएटिविटी क्या होती है? क्योंकि जब तक मीनिंग नहीं क्लियर होगा तो फिर स्टूडेंट को कैसे बनाओगे? हैं समथिंग इनोवेटिव। और अगर खाली इनोवेटिव है तब तक उसको कहें इनोवेटिव हो, क्रिएटिव कब कहेंगे उसको? इनोवेटिव एक एट्रीब्यूट है। Something new of positive change in society. और ओरिजिनल हो, Character. वेरी गुड, क्या बोला आपने? ओरिजिनल। और देखिए क्रिएटिविटी में 3-4 चीजें जो हैं, Character building. हाँ, बहुत जरूरी है। फर्स्ट इज ओरिजिनलिटी, सेकंड इज यूनिकनेस, थर्ड इज नोवेलिटी। ये आप लिख सकते हैं, पीपीटी में नहीं लिखा। और चौथी जो है दैट इज फ्लेक्सिबिलिटी, नम्यता। तो किसी भी चीज में, चाहे आप कोई प्रोसेस बना रहे हैं, कोई आपका आइडिया हो या कोई मॉडल हो या कोई आप थ्योरी बिल्डअप कर रहे हैं, उसमें ये 4 चीजें अगर होंगी देन ओनली यू कैन से दैट इट इज अ क्रिएटिव रिजल्ट। तो क्रिएटिविटी को भी, तो आपको अपने स्टूडेंट्स में क्रिएटिविटी भी करनी है, ये भी इस तरह का आपका करिकुलम होना चाहिए। और ये याद जरूर रखिएगा, स्किल्स कैसे सीखता है? स्किल कैसे सीखी जाती है? Practice. लर्निंग बाय डूइंग, लर्निंग बाय डूइंग। तो जो लर्नर है जब तक खुद नहीं करेगा तब तक, ये नहीं कि आपने लेक्चर दे दिया कि साइकिल ऐसे चलाई जाती है और फिर आप सोचें कि सब वो साइकिल चलाना शुरू कर दें। चला सकते हैं जब तक वो खुद साइकिल पे बैठ के चलाएगा नहीं। लेकिन अभी तक हम क्या कर रहे थे? हम स्किल को भी लेक्चर से ही बता रहे थे। तो जब इतनी सारी एक्सपेक्टेशंस हैं, इतनी सारी डिमांड्स हैं, तो टीचर का रोल भी तो चेंज होगा। टीचर का जो पढ़ाने का तरीके हैं उसमें भी तो चेंजेस आएंगे, ठीक है। तो वो सारे चेंजेस आज के टीचर को जो है वो एक्सेप्ट करने। अब उसका रोल जो है नॉलेज ट्रांसमिटर का नहीं है, अब उसका चेंज हो गया है।
टू क्रिएट और डिजाइन द कंटेंट। मेंटर का हो गया है, फैसिलिटेटर का हो गया है, ठीक है, तो रोल चेंज हो गया है टीचर का। तो जब हम करिकुलम बनाएंगे तो हमको, जब हम पेडागोजिकल अप्रोच या स्ट्रेटजीज बताएंगे तो उसमें भी चेंजेस जो है वो हमको करना। स्मूथ नहीं है इसमें। अब ये डिजिटल रेडी करिकुलम क्यों चाहिए और क्यों आजकल इसकी बातें कर रहे हैं? क्योंकि हमको आगे जो है फ्यूचर जॉब्स, आप देखिए जबकि आजकल एडमिशन प्रोसेस हर हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में चल रहे हैं, स्टूडेंट कैसे किसी प्रोग्राम में जाता है और काउंसलिंग में जो लोग बैठते हैं वो किस बात पर करते हैं कि इसका फ्यूचर प्रोस्पेक्ट इस प्रोग्राम का बहुत है, और टीचर्स वो बताते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं स्टूडेंट्स को, और स्टूडेंट्स फिर। और दूसरा, आजकल तो हमारे पास डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं, कहीं भी गूगल सर्च करके वो देखता है कि कहाँ पर जो है किस प्रोग्राम कोर्स का या किस एरिया में ज़्यादा प्रॉस्पेक्ट है, उससे रिलेटेड वो प्रोग्राम्स जो है वो करना चाहता है। और दूसरा देखता है कि कौन से इंस्टीट्यूशन का परफॉर्मेंस अच्छा है। तो मुझे बहुत खुशी हुई आज सुबह पता चला कि नेशनल पीजी कॉलेज का जो रिजल्ट आज आया है पूरे यूपी का, उसमें रिजल्ट बहुत अच्छा आया है, ठीक है। तो स्टूडेंट ये भी देखते हैं। तो जो ये है फ्यूचर जॉब्स रिक्वायर फ्यूचर रेडी एजुकेशन। तो फ्यूचर में मतलब 5 साल के बाद, 10 साल के बाद किस तरह की स्किल्स कॉम्पिटेंसीज हमारे स्टूडेंट को चाहिए। अगर हम एक टीचर बना रहे हैं एजुकेशन प्रोग्राम में, तो 5 साल के बाद स्टूडेंट ये टीचर जब अपनी क्लास में जाएगा तो उसमें किस तरह की पेडागोजिकल कॉम्पिटेंसीज, स्किल्स उसमें होनी चाहिए। अगर हम उसको देखकर आज पढ़ाएं तो हमारा स्टूडेंट जब कहीं भी स्कूल, किसी भी स्कूल में टीचर बनता है तो वो इजीली अडेप्ट कर लेगा। तो इसीलिए करिकुलम को जब हम फ्यूचर रेडी बनाएंगे तो ये सब चीजें जो हैं वो, जो प्रोग्राम वो स्टूडेंट करेगा उसमें आ जाएंगे। तो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन इज रीशेपिंग दी, यू कैन से दी एजुकेशनल सिनेरियो। और इसमें आपका इंडस्ट्री 4th इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन और सोसाइटी 5.0 जो कि जापानीज वहाँ से कंसेप्ट आया था, जिसमें सोसाइटी 5.0 में सुपर स्मार्ट ह्यूमन सेंटर्ड सोसाइटी की संकल्पना की गई है। आपने देखा होगा आजकल स्मार्ट होम्स, अंदर जैसे स्टेप इन, तो आपने देखा होगा मॉल पे दरवाजा खुद खुल जाता है, घर में एंटर किए लाइट्स खुद ऑन हो जाती हैं, कमरे से बाहर गए लाइट्स ऑफ हो जाती हैं, ठीक है। और आजकल कई ऑफिसेज ने कि इलेक्ट्रिसिटी को सेव करने के लिए जैसे ही व्यक्ति अपने रूम से बाहर निकलता है, वो कुछ सेकेंड उसमें मिनट्स होते हैं, उतने अगर नहीं कोई वो सेंसर लेता तो ऑफ हो जाती है, ठीक है। तो ये इस तरह के, तो ये स्मार्ट ह्यूमन सेंटर जिसमें टेक्नोलॉजी और जो ह्यूमन नीड्स हैं उनको इंटीग्रेट जो है वो किया, इस पर आजकल जो है काम किया जाता है। तो इसमें ये AI, आजकल AI पर बहुत बातें की जा रही हैं। AI को कैसे आप टीचिंग में इंटीग्रेट करेंगे, AI को कैसे रिसर्च में इंटीग्रेट करेंगे, किस तरह से AI को इंटीग्रेट करके रिसर्च आर्टिकल या पेपर बनाएंगे, किस तरह से असेसमेंट करेंगे, किस तरह से करिकुलम बनाएंगे। आज मैं करिकुलम में भी आपको बताऊंगी AI कैसे बनाएंगे। तो लेकिन हम गलती क्या करते हैं, या हमारा स्टूडेंट गलती क्या करता है, AI से ले लेता है और उसको एज इट इज पेस्ट कर देता है। ये नहीं करना है। टेक्नोलॉजी जो है जब ये आई और जब टीचर्स में बोला गया कि अब आपको आपके लेक्चर्स रिकॉर्ड किए जाएंगे और ये किए जाएंगे, तो टीचर्स में एक फियर आया कि टेक्नोलॉजी तो हमको रिप्लेस कर देगी। लेकिन ये याद रखिएगा कि टेक्नोलॉजी कभी रिप्लेस नहीं करेगी। AI आया तब भी यही फियर था कि ये हमारी नौकरी ले लेगा,
लेकिन एआई जरूर ह्यूमन माइंड की तरह काम करता है, लेकिन आप जब इस पे काम करें तो देखें, और अगर आप अपने एरिया के एक्सपर्ट हैं तो आपको काफ़ी चीज़ें उसमें गलत भी दिखेंगी। तो इट इज़ योर इंटेलिजेंस कि आप अपनी तरह से, यू कैन टेक द आइडिया फ्रॉम देयर, लेकिन आप अपने उससे उसको फिर डिज़ाइन करिए या लिखिए या जो भी आप जिस भी काम के लिए कर रहे हैं। तो यूनिवर्सिटी मस्ट प्रिपेयर स्टूडेंट्स फॉर द फ्यूचर कैरियर्स। तो फ्यूचर में जो भी इंस्टीट्यूशन में जिस तरह के प्रोग्राम्स चल रहे हैं, चाहे कॉमर्स के उसमें चल रहे हों, मैनेजमेंट में चल रहे हों, कंप्यूटर साइंसेस में चल रहे हों, किसी भी एरिया में चल रहे हों, उसमें आप देखिए कि आगे फ्यूचर क्या है। जैसे रोबोटिक्स का आजकल बहुत ज़्यादा है, तो वो उस पर आपके स्पेशलाइज्ड जो है कोर्सेज जो है उस पर के लिए। आर्ट्स में अगर मैं जाएं तो NEP में, क्योंकि विजन स्टेटमेंट इट इज सेंटर्ड ऑन द इंडियन नॉलेज सिस्टम, इंडियन नॉलेज सिस्टम पर देखिए कितने कोर्सेज, उसका इंटीग्रेशन, अभी हम लोगों ने एक प्रोग्राम कराया था IKS के ऊपर कि उसका इंटीग्रेशन, और आपको ये पता होगा कि IKS में, IKS तो पता है ना, इंडियन नॉलेज, हाँ, उसमें जितने भी डिसिप्लिन्स, यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस, स्कूल्स, जितने भी पढ़ाए जाते हैं, स्पेशलाइज्ड भी पढ़ाए जाते हैं, जितने भी इलेक्टिव, कोर, मेजर, माइनर, प्रोफेशनल, सब आपको इंडियन नॉलेज सिस्टम में कहीं ना कहीं पर मिलेंगे। सो द एरिया इज सच, और इतना बड़ा है कि आपकी पूरी जिंदगी भी लगेगी तब भी आप इंडियन नॉलेज सिस्टम को नहीं पढ़ सकते। ठीक है। और AICT ने जितने, क्योंकि ये इंजीनियरिंग के बनाता है करिकुलम, उसमें आपको पता होगा 2 क्रेडिट कोर्स IKS का डाला है, पता है कि नहीं, कंपल्सरी कंपोनेंट में डाला। तो जिन जिन चीजों की जरूरत, IKS को क्यों डाला गया है, बोलिए। To have knowledge of Indian traditional subject knowledge है, कि जब बच्चा पढ़ेगा तो वो जानेगा अपनी, हमारे इसमें नॉलेज सिस्टम में ये था। कहीं भी देखिएगा कोई हिंदी में बोलता है तो सोचते हैं कि इसको कुछ नहीं आता, और जैसे वो इंग्लिश में बोलता है तो सब बड़े इम्प्रेस, चाहे वो गलत ही इंग्लिश बोल रहा हो और जो कंटेंट बोल रहा हो वो और भी गलत बोल रहा हो। ये आज के हमारे टाइम की एक माइंडसेट जो है वो बन गया, उसको भी तोड़ना। आप देखिए आजकल गवर्नमेंट के भी कितने प्लेटफॉर्म्स, और हायर एजुकेशन में भी आप देखिए जो बड़े बड़े भी लोग हैं, दे आर नाउ स्पीकिंग इन हिंदी। ठीक, तो जो NEP 2020 में जिन बातों पर फोकस किया गया है, क्योंकि विजन स्टेटमेंट को अगर आप पढ़ोगे तो द एजुकेशन विच इज रूटेड इन द इंडियन, तो वहीं से इंडियन नॉलेज, और आप देखिए इंडियन नॉलेज सिस्टम को AICT ने बनाया और UGC ने जो करिकुलम फ्रेमवर्क दिया है और UG PG लेवल, उसमें भी ये कंपल्सरी कंपोनेंट के रूप में रखा। एक तो ये है, और दूसरा है कि जो भी विषय है, चाहे वो साइकोलॉजी हो, फिलॉसफी हो, मैनेजमेंट हो, चाहे आपका मेडिकल साइंस हो, कोई भी इंजीनियरिंग हो, सबके जो जो एरियाज में जहां जहां इंडियन नॉलेज सिस्टम का, उसको यूनिट्स में भी, कोर्स के यूनिट के अंदर भी इंटीग्रेट करने को कहा गया है। तो जब आप एक्सप्लोर करोगे तभी आपको पता चलेगा। ठीक है। अब इसमें करिकुलम शुड प्रमोट लाइफ लॉन्ग लर्निंग, ये इसकी बात भी जो है NEP 2020 में की गई है। और STP गोल्स पता है आपको, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, उसमें भी अगर 2030 तक वो अचीव करने हैं, तो उसमें लाइफ लॉन्ग लर्निंग का क्या मतलब है? लर्निंग फ्रॉम वूम टू टूम, वूम टू टूम, लर्निंग फ्रॉम वूम टू टूम। आ गया आप लोगों को समझ जो इन्होंने बोला? हाँ, तो अब बताइए क्या समझे। बोलिए बोलिए। From birth to end. From birth to till the end. Learning is ये लिटरल मीनिंग हुआ इसका, लाइफ लॉन्ग, होल लाइफ लर्निंग प्रोसेस। जो आपने बोला दैट इज द लिटरल मीनिंग। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द लिटरल मीनिंग ऑफ दिस।
ये जो टर्म यूज किया, क्योंकि अभी हम करिकुलम में इसको यूज कर रहे हैं, जब तक मीनिंग क्लियर नहीं होंगे तब तक आप उन चीजों को करिकुलम का पार्ट नहीं बना पाएंगे। लाइफ लॉन्ग लर्निंग का मतलब क्या है, किस लिए लिखा गया है? ऐसी लर्निंग जो हमें लाइफ में डिफरेंट फेजेस में हेल्प करेगा। चलिए कुछ ले सकते हैं इससे। देखिए अभी तक आप पढ़ते रहे कि बीए कर लिया, बीएससी कर लिया, एमए कर लिया, उसके बाद कुछ पढ़े आप? पढ़े? मैम कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन वी कैन से चेंजेस को अडैप्ट कर चेंजेस को अडैप्ट करना और उसके साथ अपडेट करते हैं, सीख करते हैं। देखिए जैसे जैसे हम ग्रो कर रहे हैं सिनेरियो चेंज होता जा रहा है। जो हमने 10 साल पहले पढ़ा था क्या आज वो रेलिवेंट है? तो अब जो चीज रखी जाएंगी तो हमको अपने नॉलेज एरिया को अपडेट करना पड़ेगा, अपने स्किल लेवल को अपडेट करना पड़ेगा कि नहीं? तो अपनी पर्सनल ग्रोथ और अपनी प्रोफेशनल ग्रोथ दोनों, जब हम एज अ फैकल्टी हैं, आप यहाँ क्यों आए हैं? डेवलपमेंट के लिए, प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए, ठीक है? तो अब आप यहाँ इस प्रोग्राम में 12 दिन बैठ रहे हैं और जो लोग बता रहे हैं उसको सीख रहे हैं, नोट कर रहे हैं, और कोई एक कान से सुन रहा है दूसरे से निकाल रहा है, अटेंडेंस तो मिल ही रही है और सर्टिफिकेट भी मिल ही जाएगा। किसी भी प्रोग्राम का अगर मैं एनालिसिस करूं उसमें 80% ऑफ द पार्टिसिपेंट्स दे आर ओनली वरीड अबाउट अटेंडेंस and whether they will get the certificate or not. So they are always after what are the criteria for getting the certificate. So their efforts are only to fulfill those criteria. और सिर्फ 20% लोग हैं जो वास्तव में सीखना चाहते हैं। वही 20% हैं ये लाइफ लॉन्ग। और कुछ आप लोगों ने देखा होगा अपने दोस्तों में या कि वो कहता है मैं स्वयं से ना ये वाला कोर्स कर रहा हूँ, इससे मेरे को ये स्किल जो है सीखने को मिल जाएगी। और एक मैं बहुत अच्छा अभी एकदम मेरे माइंड में क्लिक हुआ, हमारा पहले जो सेंटर था टीचिंग लर्निंग सेंटर था अंडर पंडित मदन मोहन मालवीय, उसमें हमारे ज़्यादातर जो है फिजिकल मोड में प्रोग्राम होते थे। उसमें एक प्रिंसिपल आए थे और उनकी रिटायरमेंट अगले महीने होने वाली थी, मतलब जिस महीने वो था प्रोग्राम उससे अगले महीने। तो हम लोगों ने एक पैसे रखा था, तो उन्होंने बताया कि फिर मैंने कहा कि अगले महीने रिटायरमेंट है और ये पूरा इतना बड़ा प्रोग्राम, कुछ मेरे ख्याल 20 डेज का था कि क्या वो प्रोग्राम करने आए थे। तो मैंने उनसे पूछा कि आप लोग तो प्रोग्राम्स इसलिए करने आते हैं कि करियर एडवांसमेंट स्कीम में आपको फ़ायदा हो जाए, है ना, मैक्सिमम इसीलिए वो करती है फैकल्टी। तो मैंने उनसे पूछा कि आपका तो कोई करियर एडवांसमेंट की कुछ नहीं है, आप क्यों आए हैं? और वो ही वॉज द प्रिंसिपल और वो अगले महीने रिटायर हो रहे थे। तो उन्होंने कहा कि मैं सीखने आया हूँ कि मैं जब रिटायर हो जाऊंगा तो मैं फिर बच्चों को जो यहाँ से सीख के जा रहा हूँ उसको ऑनलाइन या उस रूप में फ्री में सिखाऊंगा। जब फ्री में सिखाएंगे तो एक तो एंगेजमेंट होगी रिटायरमेंट लाइफ में, एंगेजमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, उसको भी अभी हम आगे लेंगे, अगर वो फीचर है करिकुलम का कि जब आप किसी चीज़ में एंगेज हो जाते हैं तो आपको टाइम का नहीं पता चलेगा, क्योंकि रिटायरमेंट के बाद तो उनको कोई ये नहीं कि भी 9 बजे ऑफिस जाना है और 5 बजे आना है, पूरा दिन खाली। तो वो कुछ अपना मटेरियल बना रहे हैं, कुछ हमारा टेक्नोलॉजी बेस्ड ही था वो प्रोग्राम, तो वो बनाकर और बच्चों के साथ वो जो भी होंगे उनके साथ वो शेयर डिजिटल, कहते मैं घर में भी बैठा रहूँगा और घर से ही अपनी एंगेजमेंट करूँगा। तो वो इसलिए सीख रहे थे, दैट इज़ लाइफ लॉन्ग लर्निंग, जो उसका एग्जाम्पल जो आपको बताया। तो लाइफ लॉन्ग लर्निंग अपनी पर्सनल डेवलपमेंट, अपनी पर्सनल सेटिस्फेक्शन, अपनी पर्सनल क्यूरोसिटी को फुलफिल करने के लिए और प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए भी है। तो जब आप कोई भी चीज़ सीखते हैं वो तभी सीखेंगे कि उसकी कुछ ना कुछ एबिलिटीज आप में हो या आपका वो इंटरेस्ट एरिया हो, तभी ना सीखेंगे हम। कि ऐसे कोई भी कोर्स कर लेंगे, स्वयं पे तो देखिए लाखों में कोर्स हैं,
लेकिन उसमें से आप एक दो ही चूज करेंगे। तो ये है लाइफ लॉन्ग लर्निंग। ठीक है, आगे चले, नहीं तो स्पीड से तो हम लोग कर नहीं पाएंगे। तो डिजिटल रेडी करिकुलम में, क्योंकि टेक्नोलॉजी का आजकल इंटीग्रेशन घर में आप देखिए किचन का पार्ट बना है, कहीं भी देखिए घर में, सब जगह, सिर्फ एजुकेशन में ही नहीं है और करिकुलम में तो बिल्कुल नहीं है, वो है भी तो कंपार्टमेंट। इसको पूरा ब्लेंड करना है हमने अपनी टीचिंग के साथ, अपने असेसमेंट प्रोसेस के साथ, अपनी रिसर्च प्रोसेस के साथ। तो इंटीग्रेट मॉडर्न टेक्नोलॉजीज इनटू टीचिंग लर्निंग प्रोसेस while ensuring that the graduates remain employable, innovative and globally competent. ये नहीं कि खाली उनको ये सिखा दिया, वो इसलिए सिखाया ताकि आगे उनको एम्प्लॉयबिलिटी भी मिल सके। क्योंकि आप किसी भी एरिया में जाएं, चाहे आपकी स्कूल में नौकरी लगे या किसी इंडस्ट्री में आप जा रहे हैं या किसी मल्टीनेशनल में जा रहे हैं, सबकी एक प्री डिफाइंड आपकी कॉम्पिटेंसीज एंड स्किल्स हैं। ठीक है, और उन स्किल्स का आप देखिए जब भी अपॉइंटमेंट होती है तो एक प्रेजेंटेशन या वाइवा होता है, पूछा जाता है ना कुछ, उसी वो जो आप 2 मिनट बोल रहे होते हैं उसी से आपकी असेसमेंट हो जाती है कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स क्या हैं और आपका क्या। और जिस फील्ड में कम्युनिकेशन स्किल मैटर करेगी और आपकी प्रेजेंटेशन में नहीं दिखा, बेशक आपके 90% मार्क्स हों, आपको नहीं रखा जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो अ डिजिटल रेडी करिकुलम रेफर्स टू एन एजुकेशनल फ्रेमवर्क दैट इंटीग्रेट्स डिजिटल टेक्नोलॉजीज, इनोवेटिव टीचिंग मेथड्स, इंडस्ट्री रेलिवेंट स्किल्स। तो जिन प्रोग्राम्स जो कि इंडस्ट्री, AICT इंडस्ट्री कनेक्ट की भी बात करता है, तो जिन जिन इंडस्ट्रीज के साथ आपके प्रोग्राम में कोर्सेज हैं, उन इंडस्ट्रीज को आपको एक्सप्लोर जो है वो करना है। एंड फ्लेक्सिबल लर्निंग अप्रोचेस, फ्लेक्सिबिलिटी शुड बी द, यू कैन से द इम्पॉर्टेंट ingredient of your curriculum to prepare students for future academic pursuits and professional careers. तो डिजिटल रेडी करिकुलम में आपको टेक्नोलॉजी इंटीग्रेट करनी होगी। उसके लिए ये नहीं कि आप अलग से कोर्स बनाएंगे, यू हैव टू मेक इट अ पार्ट ऑफ द पेडागोजी। आपको पता है ना करिकुलम के क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, चलिए अभी बता। प्रमोट्स डिजिटल लिटरेसी, एनकरेजेस इनोवेशन, सपोर्ट्स फ्लेक्सिबल लर्निंग, फ्यूचर स्किल्स को करे, फ्यूचर स्किल्स 21st सेंचुरी स्किल्स एंड अलाइंस विद द इंडस्ट्री नीड्स। ये AICT ने भी कहा है। तो जितने आपके प्रोफेशनल कोर्सेज हैं, स्पेशली जो आपके ये इंजीनियरिंग हैं, मैनेजमेंट जो कि इंडस्ट्री से लिंक्ड हैं, उनमें ये चीज़ें जो हैं वो आनी चाहिए। तो अभी जब हम कोर्स बनाएंगे कोई एक एग्जांपल लेके, तो उसमें इन फीचर्स को आपको जो है वो जोड़ना है। अगर अब हम इंडियन हायर एजुकेशन सिनेरियो की बात करें तो जितना NEP 20, इसीलिए मैं कह रही थी NEP 2020 जिन लोगों ने अभी तक नहीं पढ़ा उस डॉक्यूमेंट को जरूर पढ़ लें, और टाइम आपके पास बहुत कम हो तो शुरू के 5-6 पेज तो जरूर पढ़ लीजिएगा जहाँ तक डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स की बात की गई है। तो वो सारी चीज़ें, जितने डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं वो सारे आपके करिकुलम में इंटीग्रेट होंगे। ठीक है, तो NEP 2020 रिफॉर्म्स में टीचिंग के लिए बोला गया है कि टीचर सेंट्रिक से लर्नर सेंट्रिक पर जाना है, रोड लर्निंग से कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग को ज़्यादा फोकस करना है, समेटिव के बदले फॉर्मेटिव असेसमेंट को जो है वो ज़्यादा फोकस मिलाना है। और अभी जब हम करिकुलम की बात करेंगे तो उसमें यही चीज़ें भी हम डालना चाहेंगे। तो जब तक आप उसको पढ़ोगे नहीं कि क्या पॉलिसी डिमांड करती है, वही क्लियर नहीं होगा, तो आप उन चीज़ों को करिकुलम में। ठीक है, फिर है डिजिटल इंडिया मिशन। डिजिटल इंडिया मिशन देखा आपने? ये फ्लैगशिप प्रोग्राम था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। ठीक है, और इसमें कि ये डिजिटल इंडिया मिशन क्या कहता है कि पार्टिसिपेशन फॉर ऑल, अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल हो सभी के लिए, और
फिजिबिलिटी या फैसिलिटीज फॉर ऑल, तो वो तभी हो सकता है। और एनईपी का एक जो पिलर है दैट इज एक्सेसिबिलिटी, कि जो एजुकेशन है इट शुड बी एक्सेसिबल टू ऑल, सभी को शिक्षा प्राप्त हो सके। तो अगर पूरे देश में देखें, कई लोग बहुत रिमोट एरियाज में रहते हैं, कहीं स्कूल्स नहीं हैं, और कहीं की आप अगर देखें जोग्राफिकल कंडीशंस ठीक नहीं है, तो सभी को शिक्षा देने के लिए, और फिर कई फॉर्मल अगर एजुकेशन की बात करें तो हमारे पास इतने स्कूल्स या कॉलेजेस नहीं है कि हम सभी को इनकॉर्पोरेट कर लें। तो ऑनलाइन और जो डिस्टेंस मोड के द्वारा जो है उसका किया है। और अभी आपको बताऊंगा स्वयं जो कि डिजिटल इनिशिएटिव है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, उसमें आपको लाखों में फ्री प्रोग्राम्स जो हैं वो मिलेंगे, ठीक है। और अभी आपको पता होगा कि करिकुलम का जो गाइडलाइन आई है उसमें बोला है कि 40% कोर्सेज आपको स्वयं से भी लेने हैं, ऑनलाइन को भी इंटीग्रेट करना है। तो आपके जो भी एरियाज हैं प्रोग्राम के, जिस फील्ड से उससे रिलेटेड आप कोर्सेज को देखिए स्वयं को, एंड मेक इट द पार्ट ऑफ द करिकुलम। फिर है स्किल इंडिया। स्किल इंडिया की हम लोग बात कर चुके हैं। एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स क्या है, सुना है नाम? ABC नाम सुना है, हाँ या ना? सुना है, क्या है? सुना है तो फिर पता भी होना चाहिए ना क्या है, या समझने की कोशिश ही नहीं की, या समझ ही नहीं आया, ये भी हो सकता है। हैं? हम क्रेडिट पॉइंट्स मिलते हैं आपके यूजी और पीजी डिग्री में, तो ऐड ऑन होते जाते हैं। आप यदि आप अपना डिसिप्लिन या इंस्टीट्यूट भी चेंज करते हो तो वो आपके कैरी ओवर होते चलते हैं। तो ये बेनिफिट है बहुत बड़ा। मैं पूछूं ABC है क्या? एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स, जो आपका एकेडमिक है उसके आपके पॉइंट्स में आपका इवैल्यूएशन हो सकता है। ये पोर्टल है जहाँ पर स्टूडेंट्स लॉगिन कर सकते Very हैं good. और उनकी जो भी credits ये हैं वो- डिजिटल इंडिया जो है इसी का ही पार्ट है, उसी में एक इनिशिएटिव लिया गया ABC। आपको पता होगा आजकल करिकुलम को क्रेडिट बेस्ड बनाया जा रहा है, सुना है? क्या होता है क्रेडिट? Ma'am, that is the basically defining credit in terms of hours of lecture. So different, it is divided in various classification and उसके according credit allot किए जाते हैं अलग अलग उस डोमेन में। जैसे कि स्किल का है तो उसके लिए अलग, एबिलिटी का है तो उसके लिए अलग, वैल्यू आउटकम बेस्ड है तो उसके लिए अलग, डिसिप्लिन सेलेक्टिव है तो उसके लिए अलग, उस तरह से बेसिकली। आउटकम बेस्ड एजुकेशन में रिफॉर्म्स की जब आप बात करेंगे तो वहाँ पर बोला गया है कि नाउ वी हैव टू शिफ्ट फ्रॉम जो इवैल्यूएशन है दैट इज फ्रॉम द मार्क सिस्टम, और फिर हम परसेंटेज, जैसे हमारे टाइम में होता था कि 60 से ऊपर हुआ फर्स्ट डिविजनल हो गया और 50 to 60 या सेकेंड डिविजनल, तो उस सिस्टम से अब स्विच हुए हैं हम क्रेडिट बेस्ड इवैल्यूएशन। तो क्रेडिट बहुत, और जब हम करिकुलम बनाते हैं तो क्रेडिट्स का कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। क्रेडिट क्या है? इंस्ट्रक्शनल आवर्स पर वीक। मैं बिल्कुल सिंप्लीफाई करती हूँ आपको, इंस्ट्रक्शनल आवर्स पर वीक। तो जो आपके कोर्सेज हैं, आपको पता है आपका प्रोग्राम, एक बार मैं नैक के उसमें थी, किसी हम लोग मीटिंग में थे, एंड आई वॉज वेरी सरप्राइज टू सी कि प्रोफेसर लेवल तक के लोगों को मिसकंसेप्शन थी इन द टर्म्स प्रोग्राम एंड कोर्स। क्या है प्रोग्राम और कोर्स? क्योंकि जब आप करिकुलम बना रहे हैं तो प्रोग्राम और कोर्स ये टर्मिनोलॉजीज बिल्कुल आपको क्लियर होनी चाहिए। Course is a subset of program. हैं कोर्स Course is a subset of program. एंड प्रोग्राम? Program is the entire. और जरा क्लियर करें। Computer एक science- नैक में, अगर आप लोगों के सभी इंस्टीट्यूशन में नैक का हुआ होगा, उसमें पूछा था कि आपका इंस्टीट्यूशन कितने प्रोग्राम्स रन करता है और कितने कोर्सेज रन करता है। ये फर्स्ट क्राइटेरिया में था। कैसे बताएंगे प्रोग्राम्स? There are different courses in a single program, and usually contain so many programs.
तो वो लोग कर रहे थे यूजी को एक प्रोग्राम, पीजी को एक प्रोग्राम, और उन्होंने लिख दिया 4 प्रोग्राम। तो मैंने कहा फिर तो सारी यूनिवर्सिटी 4 ही लिखेंगी कि सब यही करते हैं ना, यूजी प्रोग्राम, पीजी प्रोग्राम और डॉक्टरेट और कोई अगर डिप्लोमा या वो है। तो मैंने कहा फिर दूसरी यूनिवर्सिटीज कैसे लिखती हैं 100 प्रोग्राम्स, 90 प्रोग्राम्स कैसे लिखती हैं? तब भी वो लोग मानने को तैयार, और बहुत बाद में कि फलाने ने भी तो ऐसे किया उसने। मैंने कहा दूसरे को क्यों कह रहे हैं, आप अपना भी तो दिमाग लगाएं। तो जब हम करिकुलम बना रहे हैं तो प्रोग्राम आपको, यूजी आपका प्रोग्राम कितने सारे डिसिप्लिन, उस प्रोग्राम में जितने सेमेस्टर वाइज कोर्सेज हैं, पेपर्स जिनको हम कहते हैं कोर्स, हाँ वो तो अलग, इलेक्टिव्स तो फिर अलग ना, कोर्स का टाइप है। मैं अभी सिर्फ प्रोग्रामर कोर्स में आपको बता रही हूँ। फिर कोर्सेज जो हैं यूजीसी और एआईसीटी ने अलग अलग तरह के बताए हैं। जैसे आपका एक मेजर कोर्स होगा, माइनर कोर्स सुना होगा आपने, फिर आपने सुना होगा स्किल एनहांसमेंट कोर्सेज, एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्सेज, सुने हैं कि नहीं नाम के? ये सब कोर्सेज हैं। और कुछ को बताया कि इतने क्रेडिट्स के होने चाहिए, जो आप गाइडलाइन है ना मॉडल करिकुलम की उसमें देखिएगा। एआईसीटी में बताया है बेसिक साइंसेस कोर्सेज, प्रोफेशनल साइंस, इंजीनियरिंग साइंस कोर्सेज, प्रोफेशनल इलेक्टिव्स, ओपन इलेक्टिव्स, ये सब कोर्सेज हैं। तो कोर्सेज को अलग अलग टाइप का किया है और उनकी फिर अलग अलग बास्केट्स जो है बनाई। फिर इसमें कुछ कोर्सेज ऐसे होते हैं जो कि उस प्रोग्राम के लिए कंपलसरी होते हैं, मतलब उसमें आपको कोई जो है चॉइस नहीं मिलेगा, ठीक है? वो कोर कोर्सेज होते हैं उस प्रोग्राम के, हर प्रोग्राम के अपने अपने कोर कोर्सेज होंगे। फिर एनईपी कहता है इंटरडिसिप्लिनरी मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन हो, तो आपने देखा होगा करिकुलम में डाला है मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्सेज, इंटरडिसिप्लिनरी जो माइनर है माइनर कोर्सेज। फिर एनईपी अभी हमने बात करी स्किल की बात करता है, तो स्किल एनहांसमेंट कोर्सेज की। फिर एनईपी का विजन स्टेटमेंट आईकेएस की बात करता है, तो वहां पर वैल्यू एडेड कोर्सेज, उसकी बास्केट में ये सारे कोर्सेज। तो इस तरह से कोर्सेज कुछ कॉमन रखे गए हैं। जैसे यूजी प्रोग्राम आपके अलग अलग डिसिप्लिन्स में है, साइंस में भी है, साइंस में फिर अलग है, फिजिक्स का है, केमिस्ट्री का है। लेकिन जितने बच्चे यूजी प्रोग्राम करेंगे, चाहे वो आर्ट्स कर रहे हैं, साइंस कर रहे हैं या किसी में भी कॉमर्स कर रहे हैं, उनको कुछ सब्जेक्ट्स जो हैं सेम रहेंगे। जैसे एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्सेज, मेजर वो चेंज होगा, माइनर की बास्केट होगी, उसमें से वो चूज करेगा, ठीक है? तो ये मॉडल, हाँ सब्जेक्ट वर्ड डिसिप्लिन को रिप्रेजेंट करता है, कोर्सेज को रिप्रेजेंट करता है। सब्जेक्ट कोर्सेज, ठीक है ना? मतलब जो आप पेपर रखते हैं करिकुलम के अंदर, पेपर्स कहते हैं ना उसको, उसी का नाम कोर्स है। इसीलिए आपने देखा होगा जब हम आउटकम बेस्ड एजुकेशन की बात करते हैं, वी फॉर्मुलेट द प्रोग्राम आउटकम, ठीक है? जो यूजी प्रोग्राम का यूजीसी ने और इंजीनियरिंग का एआईसीटी ने दिया है। फिर प्रोग्राम स्पेसिफिक आउटकम्स आप करते हैं फॉर्मुलेट, दैट इज पर्टेनिंग टू यूजी प्रोग्राम इन साइंस, यूजी प्रोग्राम इन आर्ट्स, यूजी प्रोग्राम इन कॉमर्स, सबका अलग अलग होगा। फिर उसके बाद कोर्स आउटकम्स करते हैं आप फॉर्मुलेट। कोर्स आउटकम जितने आपने पेपर्स रखे हैं, जितने सब्जेक्ट्स हर सेमेस्टर में, चाहे वो मेजर हो माइनर हो, अलग अलग कैटेगरीज का, सबके कोर्स आउटकम्स होंगे। ये है आउटकम बेस्ड एजुकेशन, कि आपने हर कोर्स का आउटकम, प्रोग्राम का आउटकम और प्रोग्राम स्पेसिफिक, तभी आप उसकी बाद में मैपिंग करते हैं कि भाई ये था और बच्चे ने ये एक्वायर किया, तो इतना परसेंट जो है वो, ठीक है? तो एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स की हम बात कर रहे थे। तो अब क्रेडिट्स में जो है बताया जाता है, और आपने चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम सुना होगा, ये भी यूजीसी का जो है वो रिफॉर्म था, एग्जामिनेशन रिफॉर्म, और उसमें करिकुलम को जो है क्रेडिटाइज किया गया। और जो एबीसी जो है वो आपके क्रेडिट्स को पूरा मैनेज करता है, हर स्टूडेंट जो है जो भी उस प्रोग्राम में होता है, तो एक तरह से ये डीजी लॉकर का काम करता है।
उसमें बच्चे के जो क्रेडिट्स होंगे उस प्रोग्राम के, जो उसने अपने डिफरेंट सेमेस्टर्स में कोर्सेज करके किए होंगे, उनको स्टोर करता है, उनको मैनेज करता है, उनको ट्रांसफ़र करता है जब वो एक इंस्टीट्यूशन से दूसरे इंस्टीट्यूशन की ओर जो है वो जाता है। ठीक है, तो अभी हम इतना ही लेते हैं। तो एकेडमिक बैंक्स ऑफ क्रेडिट, लेकिन ये वही कर सकते हैं जो इंस्टीट्यूशन उसमें अपने को जिन्होंने एनरोल किया हो। हर कोई नहीं कर सकता। आप बैंक में अगर जाएं और सोचें कि करें, तो पहले बैंक में अकाउंट खुलवाएंगे कि नहीं अपना, तभी तो ना फिर अपने पैसे जमा करेंगे, और जो भी आपने इधर से उधर पैसे करने तब करेंगे। तो उसी तरह से हर इंस्टीट्यूशन जो प्रोग्राम यूजी पीजी जो भी कर रहा है रन, उसको अपना पहले इसमें अकाउंट जो है वो अपने को रजिस्टर करना पड़ेगा, और यूजीसी इसको गवर्न करती है, एबीसी। ठीक है, और तब ये फिर ट्रांसफर और सारा काम करेगा। फिर मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन, ये एनईपी का है, और इसीलिए जो यूजीसी का जो मॉडल फ्रेमवर्क करिकुलम फ्रेमवर्क आया, उसमें उन्होंने मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्सेज की एक पूरी बास्केट जो है वो तैयार की गई है। और उसमें कहा गया है कि जो इंस्टीट्यूशन जो करिकुलम बनाते हैं वो अपने भी उसमें ऐड कर सकते हैं एज पर देयर अवेलेबिलिटी ऑफ देयर रिसोर्सेज एंड द फैकल्टी। फिर फ्लेक्सिबल लर्निंग पाथ, ये क्या है? Now students from different stream can opt for, हम दूसरे सब्जेक्ट से कोलैबोरेट करके, इंजीनियरिंग का स्टूडेंट ह्यूमैनिटीज़ में भी पार्टिसिपेट कर सकता है, ऑप्ट कर सकता है। तो गवर्नमेंट ने बेसिकली इस पर फोकस कर रही है ताकि आप एक स्पेसिफिक एरिया तक ना करें। अगर आप पे एरिया ऑफ इंटरेस्ट है तो आप दूसरे से भी कोलैब करके कर सकते हैं। देखिए, फ्लेक्सिबिलिटी बहुत सारे उसमें दी गई है। फ्लेक्सिबिलिटी एक जैसा इन्होंने बताया, दूसरा वो अपने लर्निंग में भी स्विच कर सकता है, हाइब्रिड। और जैसे मैंने आपको बताया था, ऑनलाइन कोर्सेज भी अब जोड़े गए हैं, तो कुछ फिजिकल मोड में कोर्सेज करेगा, कुछ ऑनलाइन में करेगा, तो इसमें भी उसको फ्लेक्सिबिलिटी दी गई है। एक इन्होंने बताई एक फ्लेक्सिबिलिटी कि एक इंस्टीट्यूशन से उसने अपना एक ईयर कर लिया, और एक ईयर जो है वो अपने क्रेडिट्स को लेकर दूसरे उसमें जो है वो जा सकता है। उस तरह की भी फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो दी गई है। और जितने भी जो उसका कोर जो एरिया है, कोर कोर्सेज का, उसके अलावा भी उनको दूसरे किसी एरिया में जो है वो स्विच कर सकता है। ठीक है, तो जो हम करिकुलम जितने भी फ्रेमवर्क बन रहे हैं उसमें फ्लेक्सिबिलिटी इज ऑल्सो। और आपने एक सुना होगा मल्टी एंट्री क्या है ये? कभी भी एंट्री कर सकते हैं। बीटेक करना है कोई स्टूडेंट, तो वो अगर मान लो 4 साल कोर्स है, अगर 2 साल कर लिया तो 2 साल के बाद भी वो एग्जिट कर सकता है। फिर बाद में मान लो 5 साल के बाद फिर अगर वो दोबारा शुरू कर सकता, कंटिन्यू कर सकता है। तो मल्टीपल एंट्री और मल्टीपल एग्जिट का मतलब है, तो ये भी फ्लेक्सिबिलिटी मिल रही है। पहले जब बच्चा 3 साल का यूजी या ऑनर्स करता था 4 साल का, तो अगर 1 साल के बाद उसके घर में हुआ कि भाई अब आपको कमाना है, अब छोड़ो पढ़ाई, तो बच्चा छोड़ता था तो दोबारा वो नहीं कर पाता था, तो जो उसकी 1 साल की पढ़ाई थी वेस्ट। लेकिन अब एनईपी में ये प्रोविज़न दिया गया है कि अगर 1 साल के बाद वो जाना चाहता है तो वो छोड़ सकता है और दोबारा कंटिन्यू कर सकता है अपने यूजी। ठीक है, तो आपको पता है 1 ईयर पर सर्टिफिकेट, 2 ईयर पर डिप्लोमा और 3 ईयर पर आपको डिग्री और चौथे पे 4th ईयर। ठीक है, तो यहाँ फ्लेक्सिबल लर्निंग पाथ बता दिए। और टेक्नोलॉजी एनेबल्ड एजुकेशन, तो अभी जो आप कोर्स बनाएंगे तो आप उसमें देखेंगे कि कहाँ कहाँ आपने टेक्नोलॉजी के एलिमेंट्स को जो है इंटीग्रेट किया है। तो ये इंडियन हायर एजुकेशन का लैंडस्केप ये बातें आपसे एक्सपेक्ट करता है कि आपके करिकुलम में वो चीज़ें होनी चाहिए। तो वो तभी आप जब डाल सकेंगे, क्योंकि टीचर ही करिकुलम बना रहा है। ठीक है, तो वो तभी बना सकता है जब उसको ये कंसेप्ट्स पता हो कि क्या चाहिए, एक्सपेक्टेशंस क्या हैं, नीड क्या है। जब तक आपको ये नहीं पता होगा तो आप उसको नहीं। हम कैसे करिकुलम बनाते हैं? अगर आप लोग करिकुलम बनाने की किसी मीटिंग में हो या आपको पार्ट बनाया हो, कैसे बनाया जाता है? सबसे पहले तो मैम जो ड्राफ्ट होते हैं, जो रूल्स होते हैं वो कि किसका कितना उन्होंने बेस दिया, और उसके बाद कुछ टॉप ऑर्गेनाइजेशंस या जो हमारे एरिया का है कि उनके जो सिलेबसेस हैं हम लोग उनको 15-20 करके उसको स्टडी करते हैं। देन उसके बेसिस पे रूल्स हम लोग पूरा उसको तैयार करते हैं। और हम क्या करते हैं कि जो प्रोग्राम्स दूसरे यूनिवर्सिटीज़ में
या जो अच्छी यूनिवर्सिटी में कुछ टीचर्स रहते हैं जो अच्छी से, अब आजकल तो गूगल पे सर्च कर लो तो जहाँ से आपको सबके से, फिर आप उसमें से जो अच्छा होगा उसको, लेकिन ये तरीका नहीं होता है। अभी बताऊंगी, तरीका भी बता मैडम एक क्वेरी थी जरा, हाँ हाँ बोलिए। अगर आपकी परमिशन। हाँ मेरी तो परमिशन है। जैसे नई एजुकेशन, आपको 5 बजे जाना है, मुझे तो यही रहता है। अच्छा आप जब तक पूछे। नई एजुकेशन पॉलिसी जो आई है तो इनको पिला दीजिए, इनको ज्यादा जरूरत है। मैं तो बोल रही हूँ ना, मुझे इसलिए नींद नहीं आएगी। इनको ये सुन रहे हैं तो इनको नींद आ सकती। यहाँ अलाउड है चाय पीना? इनको पिला दीजिए, हैं? नहीं तो ये पीते रहेंगे, सुनते भी रहेंगे ना, टाइम का सदुपयोग करने कि सिर्फ चाय ही पिएंगे और उसका आनंद लेंगे, हैं? ये इंडियन नॉलेज सिस्टम जो है, ये गवर्नमेंट का बहुत अच्छा इनिशिएटिव है कि लोग अपनी अपने भारतीय संस्कृति से परिचित हो। लेकिन ये बताइए कि यूनिवर्सिटी या डिग्री लेवल पे या ये इंडियन नॉलेज सिस्टम क्यूरिकुलम में सिलेबस में इंक्लूड करने से क्या कुछ फायदा होगा, जबकि हमारा जो पहले क्लास से नर्सरी केजी से बच्चा पढ़ के आ रहा है, कॉन्वेंट स्कूल धड़ाधड़ खुलते चले जा रहे हैं और सरस्वती शिशु मंदिर या इंडियन एक सेकंड मैं आपको समझ रही है। तो वो जब कॉन्वेंट एजुकेशन बच्चा पढ़ रहा है, जब वो पैदा होते ही जब वो हैप्पी न्यूटन डॉक्टर डिक्सन और जीसस मैरी और जीसस के सब सीख रहा है, तो आगे डिग्री में जाके क्या वो भारतीय संस्कृति सीखेगा। और ये एक बात और भी है, मैकाले ने 1833 में हमारे गुरुकुल सिस्टम को बंद करा के गवर्नमेंट एजुकेशन खोल दिए और हम आज़ादी के 80 साल के बाद भी, आज भी 80 साल के बाद हमको याद आया है कि इंडियन हमारे बच्चों को इंडियन गीता रामायण के बारे में पता होना चाहिए। अब इंडियन नॉलेज सिस्टम 80 साल के बाद अब याद आया है? और 80 साल से खाली वही वो हमारा बेटा। अच्छा आपको बता दें, हम दूसरे बच्चों को कहते हैं कि साहब वो संस्कृत पढ़ो, गुरुकुल में पढ़ो, अपने बच्चों को सीधे सेंट फ्रांसिस और सेंट मैरी गार्डिनर और सेंट पीटर, सेंट फ्रिडलिस, ये सब स्कूल याद आते हैं। कहते हैं कि साहब हमारे, और फिर मोदी जी कहते हैं कि वो सरकार कहती है कि हमारे बच्चों को गीता रामायण भी आनी चाहिए, तो गीता रामायण पढ़ाने के लिए सरस्वती शिशु मंदिर। आपका एक लेबर का भी बच्चा होता है, तो लेबर भी कहता है हम अपने बच्चे का नाम कहीं इंग्लिश उसमें लिखाएंगे, पर या सेंट पीटर्स में या सेंट फ्रांसिस में या माउंट कार्मल में। तो क्या इंडियन नॉलेज सिस्टम या ये NEP लाने से कोई फायदा होगा उसका? देखिए फायदा तो कब होगा ना, जब आप हम दूसरे देशों में जाते हैं, वहाँ देखा गया कि वो अपनी ही भाषा में जो है वो बात करते हैं और वो डेवलप्ड कंट्रीज के उसमें है। तो ये देखा गया कि हर देश कैसे विकास कर रहा है, तो वो अपनी भाषा। हम लोग क्या करते हैं, पहले उसको इंग्लिश में, फिर उसका हिंदी बनाएंगे, फिर समझेंगे दिमाग में, फिर तो हमारी प्रोसेसिंग थोड़ी लंबी होगी। लेकिन जो बच्चा, और आपने देखा होगा अब जो चेंज हुआ है स्कूल एजुकेशन सिस्टम में, 3 लैंग्वेज फॉर्मूला को ले आया गया है कि बच्चा अपनी क्षेत्रीय भाषा में भी सीखे 8वीं में। अब याद आया है 80 साल के बाद। चलिए जब याद आया तभी अच्छा, जब जाके नहीं तो अभी भी क्या है, ये सब देखिए ये सब चीजें आप सोचें कि एक ही दिन में चेंज हो जाएगा। इट इज ऑलवेज इन द स्टेज मैनर। आपने अगर NEP पढ़े तो उसके लास्ट में लिखा है कि दिस विल बी इम्प्लीमेंटेड इन स्टेज मैनर। आपको अब पता का 2023 का नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन आ गया है और उससे रिलेटेड उनकी सारी टेक्स्ट बुक NCERT ने बना दी। पढ़ा है वो आपने? वो तो ठीक है, लेकिन कॉन्वेंट में जब बच्चा शुरू से पढ़ के आ रहा है, देखिए अब जब आप उसको करिकुलम का पार्ट बनाएंगे तो हर बच्चा पढ़ेगा। बेशक जो ICS वो जो कौन से SC जो बोर्ड है वो बेशक ना डाले, लेकिन CBSE बोर्ड वाले के सभी उसमें आएगा करिकुलम और टेक्स्ट बुक सब बन गई हैं। जब तक वैदिक शिक्षा सिस्टम नहीं होगा। अरे भाई सबको डाल दिया गया है, टेक्स्ट बुक देखिए है आगे आने वाले चलिए वो बात की बात है। हम जो अपना आज जिस पर चर्चा कर रहे हैं उससे ना हटे, ठीक है? तो AICT इनको चाय यहीं पिला दीजिए, क्योंकि ताकि मैं इतनी दूर से आई हूँ, जो अपनी बात कहने आई हूँ वो तो सुना के ही जाऊँ, सुने या ना सुने।
ये कल ही बनाई है प्रेजेंटेशन और मैं यही सोची थी कि अभी बना रही हूँ, कल इसको प्रेजेंट कर रही हूँ, क्योंकि मैं कहती थी बहुत कम है, लेकिन अब देख रही हूँ कि इस स्पीड से तो ये पूरी ही नहीं होगी, इस स्पीड से हम चल रहे हैं। We all teachers have this quality. तो AICT क्या विजन करता है, तो जितने इंजीनियरिंग और मैनेजमेंट जिनके कोर्सेज करिकुलम AICT से गवर्न है, तो हमेशा याद रखिए कि जो भी आपकी रेगुलेटरी बॉडी है उसका जो मॉडल करिकुलम है उसको करिकुलम बनाने से पहले जरूर देख लें, ठीक है, कि उसमें क्या क्या चीजें हैं। तो क्योंकि ये कंप्यूटर साइंस और मैनेजमेंट वाले थे इसलिए मैंने AICT को ज़्यादा फोकस कर दिया है। तो लेकिन अगर दोनों को देखें AICT और UGC ऑलमोस्ट 80% इज सेम, क्योंकि दोनों NEP की बातें जो है वो कर रहे हैं। तो आउटकम बेस्ड एजुकेशन ये सारे प्रोग्राम्स में होगा, ठीक है। तो चाहे आप कॉमर्स के हों, मैनेजमेंट के हों, कंप्यूटर साइंस के हों, आर्ट्स के हों, आपको अपना करिकुलम कैसा बनाना है, आउटकम बेस्ड। और आउटकम बेस्ड के लिए आपको आना चाहिए कि किस तरह से कोर्स आउटकम लिखा जाता है, और कोर्स आउटकम लिखने के लिए आपको जो ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के जो एक्शन वर्ब्स हैं एट ऑल लेवल्स वो पता होने चाहिए, है पता? PO बनाए हैं इन्होंने UGC और इन्होंने एट्रीब्यूट्स भी सब बनाए हुए हैं। टीचर का काम है कोर्स आउटकम फ्रेम करने का, क्योंकि आप उस सब्जेक्ट के एक्सपर्ट हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि मैं ये पेपर पढ़ा रहा हूँ तो बच्चे में क्या क्या स्किल्स, क्या नॉलेज, क्या एटीट्यूड डेवलप होने चाहिए, तो उनको आपको स्टेट करने का आप में आर्ट होना चाहिए। तो आउटकम बेस्ड एजुकेशन ये आपका एसेंशियल कंपोनेंट है, चाहे आप कोई भी कोर्स या आप अपना करिकुलम बनाएं। एक्सपीरियंशियल लर्निंग क्या होती है? एक्सपीरियंशियल लर्निंग बेस्ड ऑन एक्सपीरियंसेस। कौन कौन सी होती है? एग्जाम्पल बोलिए, क्योंकि आपको करिकुलम का पार्ट बनाना है, एक्सपीरियंशियल लर्निंग थोड़ा ना खाली लिख देंगे। कोई लैब में एक्सपेरिमेंट कराना है, जैसे कोई चीज सिखाई गई कि ये पढ़ाई तो थ्योरी का प्रैक्टिकल भी कराना है, ठीक है, प्रैक्टिकल कराना और इंटर्नशिप इंटर्नशिप, ठीक है। और फॉर एग्जांपल एंटरप्रेन्योरशिप अगर हम रीड आउट करा रहे हैं तो वी हैव टू गिव स्टूडेंट टू गिव द चांस टू पोर्ट्रे हिज और हर स्किल्स। सिमुलेशन सुना है आपको? यस, आएगा एक्सपीरियंशियल लर्निंग में। प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग, फील्ड हैं, फील्ड विजिट्स कराते हैं, इंडस्ट्री विजिट्स कराते हैं, ये सब आएंगे। आपको देखना है आपके कोर्स में क्या आएंगे, मैं तो इसीलिए वो एक्सपीरियंशियल लर्निंग का वो बता रही हूँ, ठीक है। एक्सपेरिमेंट्स तो आएंगे ही आएंगे। और अगर आपने पेडागोजी का पढ़ा हो NEP में, उसमें आर्ट इंटीग्रेशन, स्पोर्ट्स इंटीग्रेशन, गेम इंटीग्रेशन, पेडागोजिकल के पार्ट्स दिए हैं, ये सब आपके एक्सपीरियंशियल में आएंगे। मैम वेलनेस एंड योगा, हैं? वेलनेस एंड योगा नहीं, वो तो अलग चीज होगी, मैं यहाँ पर एक्सपीरियंशियल लर्निंग की बात, मतलब एज अ पेडागोजी आप यूज करेंगे, पेडागोजिकल लर्निंग मतलब जो आपका पेपर होगा जिसको आप पढ़ाएंगे सब्जेक्ट को, उसमें जो कंटेंट है उसमें क्या आप बच्चा कैसे उसमें एक्सपीरियंशियल लर्निंग उसमें देंगे। आपने वर्चुअल लैब सुना है? उसमें भी ये आएगा, ठीक है। ये सारी चीजें आपकी एक्सपीरियंशियल लर्निंग के अंतर्गत आएंगी। स्किल डेवलपमेंट की हम लोग बात कर चुके हैं, तो इसमें आपकी जो 21st सेंचुरी स्किल्स हैं वो आएंगी, साथ में जो एट्रीब्यूट्स में जो दी है मॉडल करिकुलम फ्रेमवर्क में वो सारी आएंगी स्किल्स, ठीक है। उसमें लाइफ लॉन्ग लर्निंग एबिलिटीज,
फिर क्रिटिकल थिंकिंग, रिसर्च बेस्ड स्किल्स, इंक्वायरी, रीजनिंग, वो सारी काफ़ी सारी हैं वो लिस्ट, वो सारी आएंगी वो स्किल्स। इंडस्ट्री कोलैबोरेशन, जहाँ पर इंडस्ट्री कनेक्ट होगा जिन जिन प्रोग्राम्स में या कोर्सेज जो भी आप बनाएंगे, तो अगर आपका इस तरह का है कि उसमें कोई इंडस्ट्री होती है तो वहाँ का इंडस्ट्रियल विजिट जरूर आएगा पेडागोजिकल एक्टिविटीज। तो आप बेशक थ्योरी में पढ़ाएं वहाँ कोर्स में, लेकिन उसके लिए आपको कोई जो है प्रैक्टिकल वाले में या कहीं पर आपको उसको एक्टिविटी रखनी होगी। इनोवेशन, NEP में अगेन एक्सपेरिमेंटेशन एंड इनोवेशन पर जो है बल दिया गया है, तो इसके लिए भी आप कोई स्पेस जो है करिकुलम में रखेंगे। डिजिटल लर्निंग, जिसमें आपका डिजिटल टेक्नोलॉजीज, तो इसके लिए आपके पास डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर आपके इंस्टीट्यूशन में करिकुलम बनाने से पहले देख लें कि आपके उसमें डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है या नहीं, क्योंकि आप कहें कि मैं PPT बनाना सिखाऊंगा बच्चों को और आपके यहाँ ना सिर्फ 1-2 कंप्यूटर है जो कि नॉन टीचिंग स्टाफ ही रखता है, तो कैसे कराएंगे फिर? तो आपके पास लैब होनी चाहिए जिसमें कंप्यूटर्स हों और बच्चा जो है वो वहाँ। तो सीइंग योर डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, आप अपने उस तरह का कोर्सेज, या कभी जैसे आप सोचें कि उस तरह का है तो आपके पास लैपटॉप है तो लैपटॉप से, या आजकल तो मोबाइल से भी उस तरह के भी काफ़ी सारे हैं, और आप अपने एक तो कम से कम एक रूम में तो आपका स्मार्ट बोर्ड जो है वो लग जाए जिसमें आप कभी कभी उस तरह के इंटीग्रेशन कर सकें। एंटरप्रेन्योरशिप, ये भी आपका जो है इसमें किस किस तरह के, तो इस पे भी अगेन आपको देखना पड़ेगा कि आपका जो प्रोग्राम है उसमें बच्चा जो है किस तरह से, आपने सुना होगा मेक इन इंडिया स्टार्टअप है ना, इंजीनियरिंग में ये होते हैं, तो कि इस तरह की स्किल दें कि बच्चा जो है अपना कोई रोजगार जो है वो खोल सके, तो जो हमने एम्प्लॉय, तो उसको भी आपको जो है ढूंढना है। और रिसर्च ओरिएंटेशन, तो रिसर्च तभी आएगी, बस मेरी रिसर्च तभी आएगी जब उसमें इंक्वायरी और अपने जो भी उसका प्रोग्राम है उसमें, और आपने जो ये UG प्रोग्राम में आपने देखा होगा रिसर्च का 4th ईयर में जो है पूरा कंपोनेंट जो है रिसर्च का डाला है, 12 क्रेडिट्स का उसमें कोर्स जो है वो। ये इनिशिएटिव्स हैं AICT के, डिजिटल इनिशिएटिव्स, स्वयं को पता है आपको, ठीक है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इनिशिएटिव है और इसमें आपको कोर्सेज जो हैं नंबर ऑफ लैक्स में हैं, आप इसमें कोर्सेज को विजिट करिएगा। नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया, पता है आपको? NDLI, इसको भी जरा सर्च करिएगा और इसमें अपने को रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा। इसमें आपको लैक्स से ऊपर बुक्स, ऑनलाइन बुक्स, जर्नल, सारे रिसोर्सेज आपको मिलेंगे। AICT इंटर्नशिप पोर्टल, क्योंकि AICT ने इंटर्नशिप को मैंडेटरी कंपोनेंट कहा है तो इसके लिए उसने अलग से पोर्टल बनाया है। अगेन इट इज़ द डिजिटल इनिशिएटिव। वर्चुअल लैब्स की बात ये करता है, तो जो लोग इंजीनियरिंग और उस तरह के कोर्सेज चला रहे हैं दे मस्ट हैव दी वर्चुअल लैब्स इन देयर इंस्टीट्यूशन। वर्चुअल लैब्स में केवल जैसे आप केमिस्ट्री लैब वगैरह के तो ऑपरेटर्स वगैरह होते हैं ना, तो वर्चुअल लैब में ऑपरेटर्स नहीं होते, कंप्यूटर्स, और वो डिजिटली वो सारे वो एक्सपेरिमेंट सिमुलेशन वे में जो है वो करता है और फील वो ही आएगा। जैसे आपने एक बेस को एक एसिड में डाला, क्या रिएक्शन होगा, तो वो उसमें जब आप कमांड देंगे कंप्यूटर ने तो वही चीज़ें वहाँ पर दिखेंगी। तो ये वर्चुअल लैब्स का भी कंसेप्ट किया है। फिर है ये स्मार्ट इंडिया हैकेथॉन, इसमें जो फंक्शनल सॉफ्टवेयर्स बनाने के लिए ये इवेंट जो है वो कराया जाता है, अगेन इंजीनियरिंग कॉलेजेस के द्वारा ये कराया जाता है। फिर ये AICT आइडिया लैब है। LMS एडॉप्शन की बात की गई है कि हर इंस्टीट्यूशन जो है एक अपना लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है, ठीक है, जिसके थ्रू सारा जो लर्निंग रिसोर्सेज सब फैकल्टी अपने वीडियो या जो भी चीज़ें हैं वो इस प्लेटफॉर्म पे जो है वो LMS आपको जैसे जो सिंपल यूनिवर्सिटीज़ हैं उन्होंने गूगल का मूडल आपने सुना होगा, ठीक है, तो अलग अलग कैनवा का भी कई लोग कई इंस्टीट्यूशंस ने जो है वो यूज़ किया है। तो ये बहुत सारे लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है। जब इंस्टीट्यूशन खरीदता है काफ़ी हैविली पेड भी होते हैं, तो उसमें काफ़ी सारे ऑप्शंस जो हैं वो।
और आपने गूगल क्लासरूम सुना होगा, वो एक टीचर फैकल्टी जो है वो अपने लिए सिंपल, क्योंकि आपके पास जीमेल अकाउंट है तो गूगल क्लासरूम से आप अपने पढ़ाई का जो है बच्चों से असाइनमेंट लेना उसको मैनेज कर सकते अपने लेवल के लिए, लेकिन इंस्टीट्यूशन के लिए अलग अलग है। और ऑनलाइन असेसमेंट, क्योंकि अब स्विच हो गया है फ्रॉम मैनुअल टू दी ऑनलाइन असेसमेंट, तो इसका भी पार्ट बनाइए। बहुत सारे ऑनलाइन असेसमेंट रूल्स हैं। एनईपी फॉर्मेटिव असेसमेंट की बात करती है, और अभी हम जब कोर्स में करेंगे तो उसमें फॉर्मेटिव असेसमेंट में आप बहुत सारे ऑनलाइन असेसमेंट टूल्स हैं, जिसमें काहूट पहले वो था, आजकल आया क्विजेज, अब इसका नाम है वे ग्राउंड, उसको एक्सप्लोर करिएगा। तो उसमें आप बहुत सारी एक्टिविटीज़ अपना पढ़ा रहे हैं और उसी में बीच में जो है वो क्वेश्चंस आप अपने स्टूडेंट से, तो ऑनलाइन असेसमेंट को भी आपको पार्ट जो है बनाना है। तो ये सारे डिजिटल इनिशिएटिव हैं AICT के फॉर इंटीग्रेटिंग इन द करिकुलम। ये रिफॉर्म्स हम लोग बात कर ही चुके हैं। अब हम आते हैं मेन फीचर्स जो कि कोर्सेज पर, तो डिजिटल रेडी जो हम अभी कोर्स बनाएंगे, करिकुलम नहीं हम बना रहे, उसमें कोर्स बनाएंगे, अभी आपको वो मिल जाएगा टेम्पलेट। उसमें डिजिटल लिटरेसी, टेक्नोलॉजी एनेबल्ड लर्निंग को आपको रखना है, इंडस्ट्री ओरिएंटेड कॉम्पिटेंसीज इफ एनी, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, ये भी एट्रीब्यूट्स और स्किल्स में लिया गया है, इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप और लाइफ लॉन्ग लर्निंग और आउटकम बेस्ड, इन सब को आपको इन फीचर्स को कंबाइन करना है। And according to AICT, a digital ready curriculum should ensure that students are capable of learning, adapting, innovating and working efficiently in technology driven environment. ठीक है, तो वो हम सब टेक्नोलॉजी जो है, फोर पिलर्स डिजिटल रेडी करिकुलम के, जिसमें नॉलेज, तो जो आप कोर्सेज रखेंगे उस कोर्स में जो आप यूनिटाइज करके जो कंटेंट